Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. Okay, so in the previous session students, we have discussed about the male reproductive system, and in today's session we will learn about female reproductive system. So before starting today's session, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. You will be able to label the different parts of the female reproductive system. You will be able to summarize the sexual cycle in females, differentiate between menopause and menarche, and explain the post-fertilization changes takes place in the female reproductive system. Okay, so let's start with the today's session, that is about the female reproductive system. Students, female reproductive system is more complex than that of the male reproductive system. Why? Because it has to perform the special functions, like it has to receive the sperm, it is the site of fertilization, it is the place where the embryo get developed or growth of the embryo takes place. Understood? That's why it is more complex than that of the male reproductive system. So these are the various organs that consist female reproductive system. 2 ovaries are there, pair of ovaries, 2 oviducts or fallopian tubes, 1 uterus, cervix and vagina. So these are the various organs that consist female reproductive system. Now let's understand the various parts of the female reproductive system through this diagram. Okay, now let's label it. These oval shaped structure, these are ovaries. Okay, ovary. As we are labeling singular, that's why single one, that's why it is ovary. Okay, this is the ovary. It is located in the abdominal cavity near the kidney, and both these ovaries are attached with the uterus. Okay, this bag like structure, this is called uterus. Attached with the uterus with the help of this tissue, this is called ligament. Connective tissue, okay, that is ligament. And this part of female reproductive system is called fallopian tube. Okay, this is the fallopian tube or oviduct. Fallopian tube. This funnel shaped part of oviduct is called infundibulum. Okay, इसको हम क्या कहते हैं? Infundibulum. It is having these finger-like projections. These are called fimbriae. F-I-M-B-R-I-A-E. Fimbriae. Okay. Now, what is the function of this part? It receives the egg from the ovary. Okay. ये ovary से क्या करता है? Egg receive करता है, and it passes through this oviduct. And this oviduct is also the site of fertilization. अगर fertilization होती है तो कहाँ होती है? In the fallopian tube. Okay. Now from both the sides, these fallopian tubes unite in a bag-like structure that is and opens into a bag-like structure that is called the uterus. ठीक है? This is the bag-like structure, hollow. It is inverted, pear-shaped and muscular structure. ठीक है, मसल्स का बना हुआ है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द यूटरस. हियर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस. ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जो फीटस बन गया है, वो यहाँ क्या करता है? ग्रो करता है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वोम्ब, मदर्स वोम्ब. ओके, इट इज द यूटरस.
The next part of the female reproductive system is cervix. Cervix, it is the lower and narrower portion of the uterus which opens into the vagina. So this is the vagina. Okay, vagina, it receives the sperms from the male partner, and it also serves as a birth canal. So we have labeled the diagram of female reproductive system, and we have also learnt the various functions of these different parts, okay, that they are performing. What is the function of the ovary? Ovary क्या करती है? It produce female gamete, egg बनाती है, और साथ में क्या करती है? It secretes female sex hormones that are estrogen and progesterone. Okay, students, here I have written the explanation of the female reproductive system, so you can go through it. The first one part is the ovaries, pair oval shaped organs located in the abdominal cavity near the kidney, okay, connected with the ligament to the uterus, produce female gametes, secrete the sex hormones. Fallopian tubes or the oviducts, these are funnel shaped opening near the ovary that is called infundibulum. Okay, it carries the egg or ovum from ovary to uterus. It is the site of fertilization, and from the both sides these two oviducts open into a uterus. Uterus, it is the hollow inverted pear shaped muscular structure. Here the growth and development of fetus takes place, and it is the site of implantation. Okay, in the coming topics we will discuss what is implantation. The next part is the cervix. It is the lower and narrower portion of the uterus which opens into the vagina. Vagina, it receives the sperm from the male partner and serves as a birth canal. Okay, this will helps you to write explanation of the female reproductive system in your exams. So students, now let's come to the next topic, that is the sexual cycle in females. As we all know that the fertility period, or when the females start producing egg or female gamete, okay, कब करते हैं start? At the age of puberty, means about the 10 to 12 years of age. Okay, when the ovaries start releasing ovum. Actually what happens when the girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. बहुत सारे उसमें immature eggs होते हैं, पर जैसे ही puberty age start होती है और on reaching the puberty it start releasing mature ovum. ठीक है, mature egg produce करना start कर देती है. Okay, so let's see what happens. So at the age of the puberty the ovaries start producing egg. ठीक है, but both the ovaries do not release egg at the same time. मीन्स दोनों एक साथ एग रिलीज नहीं करते हैं, मीन्स कि दो एग रिलीज होंगे एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसा नहीं होता. ठीक है, वन ओवरी रिलीज द एग ऑल्टरनेटिवली आफ्टर अ मंथ और आफ्टर द पीरियड ऑफ 28 to 30 days. ठीक है, क्या होता है 28 to 30 के डेज के गैप में या अप्रॉक्सीमेट 1 month के गैप में ओवरी जो है वो 1 by 1 एग रिलीज करती है. एक बार ये रिलीज करती है आफ्टर 28 to 30 days और 1 month के बाद ये रिलीज करती है. ओके, सो दे आर रिलीजिंग द एग्स ऑल्टरनेटिवली. नाउ द ओवरी विल रिलीज द एग एंड दिस एग विल रिसीव बाय इनफंडिबुलम. ठीक है, ये जो ओविडक्ट का फनल शेप्ड पार्ट है ये एग को रिसीव कर लेता है. ठीक है, अब क्या होगा, इट पासिस थ्रू दिस फेलोपियन ट्यूब. इस फेलोपियन ट्यूब में से ये पास होता है. इट इज फेलोपियन ट्यूब जो है बेटे, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होगी. फर्टिलाइजेशन तो तभी होएगी ना अगर कौन अवेलेबल है, स्पर्म अवेलेबल है. अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, ये एग जो है वो 1 day का इसका लाइफ स्पैन है. ठीक है, ये 1 दिन तक
लिविंग रहता है और उसके बाद ये डेड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एग। ये तो एग के बारे में बात करी। अब यूटेरस भी क्या करता है एवरी मंथ, बिकॉज द एवरी मंथ एग इज रिलीजिंग फ्रॉम द ओवरी, सो इट इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करता है वो यूटेरस? बाय प्रिपेयरिंग इट्स लाइनिंग थिक, स्पॉन्जी, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये अपनी लाइनिंग को क्या कर लेता है? थिक कर लेता है, स्पॉन्जी बना देता है और ब्लड वेसल्स डेवलप कर देता है। अंडरस्टूड? क्यों करता है, किस लिए करता है, दैट्स वी विल डिस्कस, वो हम डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट लिसन केयरफुली। अब देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो एग है इट विल लिव्स फॉर 1 day ओनली, ये एक दिन के लिए सर्वाइव करेगा एंड आफ्टर दैट इट विल डिसइंटीग्रेट। अब इस लाइनिंग की, इन ब्लड वेसल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दे विल ऑल्सो शेड ऑफ, ये सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे एंड रिलीज थ्रू दिस वजाइना in the form of blood and mucus, and that flow of blood is called menstruation. उस flow of blood को हम क्या कहते हैं? menstruation. Understood? menstruation क्या है? जब ये unfertilized egg और ये जो लाइनिंग है यूटरस की, ये सारी शेड ऑफ हो जाती है, रिलीज होती है फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, दिस इज कॉल्ड menstruation. इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, एंड दिस लास्ट फॉर 2 to 8 days। ठीक है, 2 to 8 days तक ये प्रोसेस चलता है, दिस मेंस्ट्रुएशन एंड दिस साइकिल, बेटे दिस इवेंट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 28 days. In every 28 days this process repeats itself. ठीक है, सो इसको आप क्या कह देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। साइकिल मीन्स जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है। सो दिस इज रिपीटिंग इन आफ्टर इन एवरी 28 days, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दैट फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। See, this is the definition of the menstruation is the time of uterine bleeding in which an unfertilized egg and the thick uterine lining comes out through vagina as blood and mucus. That flow of blood is called menstruation. It lasts for 2 to 8 days and all these events occur in every 28 days. So these cycles of events of menstruation is termed as menstrual cycle. ये जो अपने आप को repeat कर रही है, so that is called menstrual cycle. So students, जब ये menstruation start होती है in the girls, okay, that age or that time is called menarche. उसको हम क्या कहते हैं? menarche. The onset of menstruation or menstrual cycle is called menarche. It is the stage of initiation of menstruation in the life of female or girl. ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द menarche. ये जर्नली कब होता है? 11 to 13 ईयर्स की एज में होता है एंड इट रेफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन गर्ल्स। क्योंकि एग रिलीज करना शुरू कर दिया ना, तो इस एज पे इट इज रेफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ द नेक्स्ट टर्म जो इसमें आती है दैट इज द मीनोपॉज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में या फीमेल्स में दे आर प्रोड्यूसिंग एग्स फॉर द होल लाइफ, नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक पीरियड ऐसा आता है जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये स्टॉप कर जाता है। सो इट इज द स्टेज एट विच द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स इन द लाइफ ऑफ अ वुमन इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। उसको हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। It occurs in women at an age between 45 to 50 years. ठीक है, क्या एज है इसके लिए? 45 to 50 years. It refers to the end of the reproductive phase in the woman. क्योंकि एग रिलीज नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होने के चांसेस भी नहीं होंगे. So it refers to the end of the reproductive phase. So this is the difference between menarche and menopause. Okay, we have studied in the form of difference. Now come to the next.
ये तो किया हमने इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. नाउ व्हाट हैपन्स इफ द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन होती कैसे है. नाउ लिसन केयरफुली. थ्रू दिस वेजाइना, वेजाइना इट इज द साइट, है ना, ये क्या करता है, रिसीव द स्पर्म. फ्रॉम हेयर द स्पर्म गेट एंटर्ड इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आ जाएंगे. एंड थ्रू दिस यूटेरस, ओके, दे रीचेज अप टू द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, sperm get entered through this vagina and they reaches up to the fallopian tube. If the egg is available, ये fertilize तो तभी करेगा ना, if the egg is available. ठीक है, अगर egg available नहीं है then क्या होगा, जो sperm का लाइफ स्पैन होता है inside the female body that is for 5 days. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 5 days होता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है. तो अब क्या होगा, इफ द एग इज देयर, अगर ओवरी ने उस टाइम क्या किया हुआ है, एग रिलीज किया हुआ है, सो दिस पार्ट ऑफ द ओविडक्ट रिसीव द एग एंड फ्रॉम हेयर द स्पर्म is also coming, from here the egg is coming and they will get fertilized. ये क्या हो जाएंगे, fertilized हो जाएंगे. And after fertilization they will form zygote. ओके, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट, दोनों के न्यूक्लियाई आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म जाइगोट एंड दैट इज डिप्लॉयड. ओके, हम सबको मालूम है कि गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, दे आर हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड द जाइगोट इट इज डिप्लॉयड. नाउ व्हाट विल हैपन टू द जाइगोट, जाइगोट क्या करेगा, इट विल अंडरगोज मल्टीपल डिविजन्स, बहुत सारी डिविजन्स होंगी, डिविजन्स भी होती जाएंगी और जैसे ही ये क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएगा दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. क्या कहते हैं हम उसको, एम्ब्रियो. इट विल फॉर्म एम्ब्रियो. सो यहाँ से ये इट कम्स डाउन इनटू द यूटेरस. ठीक है, ये नीचे यूटेरस में भी आता है और साथ के साथ डिवाइड भी करता जाता है. एंड व्हेन इट रीचेज हेयर इन द यूटेरस, सो यूटेरस वॉल में ये क्या करता है, अपने आप को फिक्स कर देता है, अटैच कर देता है. ठीक है, यहाँ पे आके ये क्या कर देता है, अपने आप को अटैच कर देता है विद द यूटेराइन वॉल. ओके बेटे, ये जो इनर लेयर होती है यूटेरस की दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम. ENDOMETRIUM. वैसे यूटेरस की 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, 3 लेयर्स कौन कौन सी है, जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट इज द पेरीमेट्रियम. ठीक है, जो सेंटर वाली है दैट इज मायोमेट्रियम. ओके, दिस मिडल वन एंड दिस इज एक्सटर्नल वन. ओके, दैट इज द पेरीमेट्रियम. अब एंडोमेट्रियम में क्या हो गया, ये अपने आप को क्या कर लिया, इसने अटैच कर लिया. इस अटैचमेंट और एम्बेडिंग ऑफ द फीटस, फीटस बोलेंगे या एम्ब्रियो बोलेंगे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बोलेंगे. एम्ब्रियो यहाँ क्या कर लेगा, अपने आप को फिक्स कर लेगा. ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. ठीक है, उस अटैचमेंट को, उस अटैचमेंट वाले प्रोसेस को और एम्बेडिंग होना एम्ब्रियो की इन द यूटेराइन वॉल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन. इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन. अब ये अपने आप को इधर फिक्स कर लिया इसने, किसके साथ, मदर का पार्ट है ना ये, तो ये मदर के साथ क्या हो गया, फिक्स हो गया. और यहीं पर ये क्या करता है फॉर द 9 months. ठीक है, यहीं पर ये क्या करता है, ग्रो और डेवलप होता है. नाउ इफ समवन आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस, मोस्टली हम सब कंफ्यूज होते हैं ना विद द एम्ब्रियो एंड द फीटस. सो बेटे, एम्ब्रियो क्या होता है और फीटस क्या होता है. एम्ब्रियो जब जाइगोट क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाता है ना, डिवाइड करके, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं,
तो दैट क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। उसको आप क्या कह देते हो? एम्ब्रियो कह देते हैं, ठीक है। और जब इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, व्हेन द बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड, इजीली आइडेंटिफाइड होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स गेट आइडेंटिफाइड, ठीक है। जब वो बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होने शुरू हो जाते हैं तब आप उसको क्या कहते हो? फीटस कहते हो, ओके। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहते हैं। जब उसके बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होने शुरू हो जाते हैं तो देन इट इज कॉल्ड फीटस। तो यहीं पे एम्ब्रियो क्या करता है? अटैच होने के बाद फीटस बनता है, ठीक है। नाउ आफ्टर हेयर इम्प्लांटेशन क्या होता है? सो बेटे क्या होता है? दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो, अज्यूम्ड दैट दिस इज द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ये क्या है? ग्रोइंग एम्ब्रियो है। ये अपने अराउंड क्या बना लेता है? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। एंड दिस प्लेसेंटा इट इज हैविंग विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड। एम्ब्रियो साइड में इसमें क्या होते हैं? विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। और मदर साइड बाहर की तरफ को क्या होते हैं? बहुत सारे ब्लड स्पेसेस होते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि थ्रू ब्लड एम्ब्रियो क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम द मदर एंड एक्सक्रीट इट्स वेस्ट मटीरियल ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या करता है? दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो, कि मदर्स ब्लड से एम्ब्रियो के ब्लड में वो चीज़ें सारी क्या हो जाए? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। और एम्ब्रियो जो भी अपना वेस्ट बनाता है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू वो क्या कर देता है? मदर ब्लड में डाल देता है, ठीक है। सो इस तरह से एम्ब्रियो को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। और कौन हेल्प करता है उसमें? प्लेसेंटा हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज द प्लेसेंटा that serves as a connection between mother and the growing embryo. Here I have written a whole process, okay, of fertilization and post-fertilization changes that are taking place after fertilization. ठीक है, fertilization में के बाद क्या होता है? अच्छा, आप ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स, in human beings which type of fertilization is there? Internal or external? सबको मालूम है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। सो क्या होता है? एक बार हम जल्दी से इसको क्विक रिवीजन दे देते हैं। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम उसको कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे। द मेल गैमीट एंटर्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज द वेजिना, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और मेटिंग. The sperms are highly active and motile. They swim into the uterus through cervix and then pass into the oviduct. ठीक है, हमने कहा ना वो oviduct में आ जाते हैं. And then in the oviduct fertilization occurs. और fertilization तभी होगी if the egg is present, if the egg is available. तभी ये क्या करेगा? Fertilize करेगा. When a sperm reaches the egg, it penetrates inside the ovum. क्या होता है? हमने प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट, ठीक है, कि जो स्पर्म का हेड होता है दैट इज हैविंग एक्रोसोम और प्रोड्यूस्ड स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स जो किस में हेल्प करते हैं? एग को, सॉरी, स्पर्म को एग में पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, टू गेट इनटू द ओवम, ठीक है, उसके अंदर जाने में वो हेल्प करते हैं। अब बेटे बहुत सारे स्पर्म्स आए हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो एंटर करते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, पर सिर्फ ओनली द वन स्पर्म गेट फर्टिलाइज्ड विद द ओवम, सिर्फ एक ही स्पर्म करता है। क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है, सो एग जो है वो सर्टन काइंड ऑफ केमिकल्स रिलीज करता है जो प्रिवेंट करता है रेस्ट ऑफ द स्पर्म्स को एंटर करने से, ठीक है। फिर और कोई स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। And the fusion of the male and female nuclei occurs to form the zygote, and then a zygote undergoes various mitotic divisions to form an embryo.
ठीक है, क्या बन गया वो क्लस्टर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. देन आफ्टर दैट एम्ब्रियो सिंक्स डाउन एंड रीचेज इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जहां वो एम्बेडिंग कर देता है एम्ब्रियो की इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन. और आफ्टर एम्बेडमेंट के बाद, है ना, एम्बेडेड होने के बाद वो क्या डेवलप करता है, प्लेसेंटा बनाता है. सो व्हाट इज प्लेसेंटा, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन प्लेसेंटा, देन यू विल राइट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन यूटेराइन वॉल. जो यूटेराइन वॉल में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड है, ठीक है, जिसके अंदर एम्ब्रियो है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. ओके, अब नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें बहुत सारे विलाई ऑन द एम्ब्रियोज साइड ऑफ द टिश्यू, और मदर साइड में क्या है, ब्लड स्पेसेस हैं विच सराउंड द विलाई. इसकी ये किस लिए है, इसका क्या एडवांटेज है, दिस प्रोवाइड्स a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनका एक्सचेंज होने में हेल्प करता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, इट हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड, and it also helps in removal of waste materials from embryo to mother's blood. ठीक है, मदर्स ब्लड में वो वेस्ट मटेरियल भी डाल देता है और मदर ब्लड से न्यूट्रिशन भी ले लेता है और ऑक्सीजन भी वहीं से मिलती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द प्लेसेंटा, इट्स फंक्शन. ठीक है, दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दिस इज ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, 3 मार्क्स में ही आता होता है पेपर में. सो रिवाइज इट प्रॉपरली. नाउ व्हाट हैपन्स, जब बेटे एम्ब्रियो उसमें फिक्स कर गया, अटैच कर गया, ठीक है, अब वो क्या करता है, टिल फॉर 9 months वो वहीं पे क्या करता है, ग्रो करता है. ठीक है, सो उस पीरियड को आप क्या कहते हो, प्रेगनेंसी और जेस्टेशन. द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ यंग वन इज टर्म्ड एज जेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी, एंड इट गेट कंप्लीटेड इन 9 months और 280 days. ठीक है, अब व्हेन वो फुली ग्रो कर गया, यंग वन बन गया, तो यंग वन के बर्थ को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, दैट इज द पार्चुरेशन. ये क्या होता है, इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म यंग वन फ्रॉम मदर्स यूटेरस एट द एंड ऑफ जेस्टेशन, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन. ओके, और इट इज द बर्थ ऑफ द यंग वन, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन. This occurs as a result of rhythmic contractions of the muscles in the uterus. As I told you, it is a muscular organ. ठीक है, यूटरस क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये इजीली एक्सपैंड भी कर जाता है. तो इसमें एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होती है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दैट लीड्स टू द बर्थ ऑफ द यंग वन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो रिवाइज इट प्रॉपरली एंड now I am going to show one video. Okay, so watch this video carefully and try to understand the concept with more clarity. Okay, so take care and bye bye. The process leading up to the conception and birth of a newborn baby has many stages. Let's look at these stages in detail. During sexual intercourse, sperms enter the vagina and travel upwards from the uterus to the oviducts. If a sperm encounters an egg in the fallopian tube, it fuses with it to form a zygote. This fusion of the male gamete or sperm and the female gamete or egg cell to form a zygote is called fertilization. The zygote marks the start of a new life. After fertilization, the zygote continues to move down the fallopian tube towards the uterus. As the zygote travels, it starts dividing and forms a mass of cells called blastocyst, which eventually develops into an embryo. In about 7 days,
the blastocyst reaches the uterus. The blastocyst then embeds itself in the lining of the uterus called the endometrium. This process is called implantation. Implantation leads to the state of pregnancy. During pregnancy, the embryo receives nutrition and oxygen from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. The disc-shaped placenta is embedded in the uterine wall. The placenta contains finger-like projections from the embryo called villi. The villi increase the surface area of the embryo and help in absorption. The villi are surrounded by spaces that fill up with blood from the mother's uterine lining. Nutrients and oxygen are passed from the mother's blood to the embryo, and waste products are passed from the embryo to the mother's blood. As the embryo develops, after approximately 8 weeks from fertilization, it develops identifiable body parts such as hands, legs, head, eyes, and ears. At this stage, the embryo is called a fetus. The fetus is connected to the placenta by a thick cord known as the umbilical cord. Pregnancy lasts for about 280 days, that is, approximately 9 months. This period is called the gestation period. During this time, the embryo fully develops in the uterus. At the end of the gestation period, the muscles of the uterus contract rhythmically. The fully formed fetus is then pushed out of the uterus head first through the vagina. This process of giving birth to a child is known as parturition.